وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا ومنيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإبراهيم الذي وفى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف توصیف عبادت نظر و نیاز اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے. اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یا اس کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا یہ سراسر شرک کہلاتا ہے. یہ میرا اور آپ کا ایمان. انگیت تعداد درود و سلام نازل ہو حبیب کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور میری آواز سننے والی اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے الحمدللہ کل عید الاضحیٰ کی نماز اور خطبے سے ہم فارغ ہوئے. الحمدللہ ہم میں سے بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنوں نے قربانی ادا کی اور کچھ کر رہے ہیں. دعا ہے کہ رب العالمین ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے. آمین. حاضرین جمعہ، میں اور آپ اپنی زندگی کے ہر سال جب بھی عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، ذی الحجہ آتا ہے، تو اپنی زندگی کے ہر سال میں ایک مرتبہ کم از کم اس شخصیت کو بار بار یاد کرتے ہیں، بار بار ذکر کرتے ہیں جس کا نامی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم بار بار آپس میں یاد کرتے اور ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے. یہ وہ ابراہیم ہیں جن کو ہم بار بار یاد کرنے کی وجہ یہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے 25 سورتوں میں یاد کیا. 25 سورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ رب العالمین نے بار بار کیا اور اپنے لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو خلیل بنانے کا اعلان کیا. ہم ایسے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم ادا کر رہے ہیں. ان دنوں میں جب بھی عید الاضحیٰ آتی ہے تو ہم ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کے مطابق قربانی دینا ہے. یہ تعلیمات حبیب علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو دی اور اسی چیز کو بار بار ہم زندہ کرتے جاتے ہیں. تو آئیے یہ ابراہیم علیہ السلام جن کی زندگی کو بار بار ہم یاد کرتے، پڑھتے اور سنتے ہیں، آخر کار ان کی وہ کیا چیز، ان کی کیا وہ خصوصیت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک آنے والے تمام مسلمانوں کے درمیان اس بات کا اعلان کر دیا کہ جب تم ایمان لاتے ہو، ایمان کے جو ارکان ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں، اسلام کا جو اہم حصہ ہے ایک حج، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے تعلق
ताल्लुक रखने वाली चीज। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनकी जिंदगी को हम बार बार पढ़ते हैं। आइए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी इब्तिला व आजमाइश में भरी हुई थी। आपकी जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से इम्तिहानात ही इम्तिहानात थे, आजमाइश थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत की सुबह तक आने वाले इंसानों के दरमियान ये ऐलान करवाना चाहता था, इस बात का एहसास दिलवाना चाहता था कि अल्लाह को इस बात का इल्म नहीं कि इब्राहिम को अगर इम्तिहान लिया जाए, इब्राहिम कामयाब हो जाएगा। अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह जानता है। लेकिन हम जैसे कमजोर ईमान वालों के लिए, हम जैसे आने वालों के लिए, क़यामत की सुबह तक आने वालों के दरमियान इस बात का ऐलान किया जाए, इब्राहिम वो है जो इमामुल मुवहिदीन है, तौहीद परस्त लोगों का इमाम है। इब्राहिम वो है जब अर्श वाले ने हुक्म दिया कि कहा ऐ इब्राहिम अस्लिम, क़ाल अस्लमतु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम से कहा ऐ इब्राहिम तो अपने आप को मेरे सरेंडर कर दे, इब्राहिम ने कहा मैं रब्बुल आलमीन के लिए सरेंडर हूं। ये वो इब्राहिम जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के हवाले कर दिया और ऐलान कर दिया इन्नी वजह लिल्लाहि फतरस समावाति वल अर्ज़, मैं अल्लाह के हवाले हो गया, मेरी अल्लाह। और एक जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानियां, मेरे इबादत, ये मेरा उठना बैठना, मेरा चलना फिरना, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले है। ऐलान करने वाले कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने क्या कहा था? कहा ऐ इब्राहिम अस्लिम, इब्राहिम तो अपने आप को सरेंडर कर दे। इब्राहिम ने सिर्फ ज़बानी दावा नहीं किया, मैं और आप हैं कि ज़बानी दावा कर रहे हैं, मैं और आप हैं सिर्फ अपनी ज़बान से बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं। इब्राहिम मुसलमान होने का ज़बानी दावा नहीं किया, बल्कि इब्राहिम ने कहा अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, मैं रब्बुल आलमीन के लिए सरेंडर हो चुका हूं। मेरा उठना बैठना, मेरा चलना फिरना, मेरा खाना पीना, मेरी सारी जिंदगी तेरे हवाले है। जा ऐ अल्लाह, जैसा तू कहेगा मैं वैसा कर कर बताऊंगा। इब्राहिम ने जब अल्लाह का जब हुक्म आया, इब्राहिम करते चले गए। अल्लाह ने जो भी मांगा, इब्राहिम ने कदम भी पीछे हटाए बगैर अपने आप को, अपनी बीवी को, अपने औलाद को, जारी कुर्बानियां, जो कुछ पेश करने का जो वक्त आया सब कुछ देते चले गए। कहीं चूं और चरा का सवाल नहीं, कहीं क्यों और कहां का सवाल नहीं, हर चीज इब्राहिम ने अल्लाह के हवाले कर दिया। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये कहना पड़ा कि इब्राहिम को जो इम्तिहान हमने लिया, यकीनन ये बड़ा इम्तिहान था, इसमें इब्राहिम कामयाब। आइए मौजूद हाज़रीन, ये वो इब्राहिम है जिनकी जिंदगी मेरे और आपके लिए नमूना है। ये वो इब्राहिम है बच्चों के लिए नमूना, जवानों के लिए नमूना, औरतों के लिए इब्राहिम के घर वाले नमूना। मेरे मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बड़े गौर से आप जब समाप्त फरमा रहे हैं तो आइए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई जिंदगी के मराहिल आप जानते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम किस खानवादे में, किस घर में पैदा हुए? आप बताइए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, ऐसे घर में पैदा हुए, बुतगर और बुत परोस के घर में पैदा होते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब होश संभालते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम होश संभालते हैं, उसी वक्त उनको एहसास हो जाता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये जो शिर्क किया जाता है ये सही नहीं, शिर्क से बेजार हो जाते हैं। आज हम क्या कहते हैं, बच्चा 15 साल और 20 साल की उम्र को पहुंच जाता है, तब भी बच्चे की गलती के बारे में बताया जाए, अरे बच्चा है ना मौलवी साहब, छोड़ो। क्या बोलते हैं हम लोग? बच्चा है ना मौलवी साहब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब होश संभालते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मैच्योर होते हैं, अभी हक और बातिल के फर्क करने का मिजाज पैदा होता है, सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को, अगरचे डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचाना नहीं, लेकिन शिर्क से अपने आप को बरात का इजहार किया और अपने आप को शिर्क से रोका रखा। अपने बाप से कहा किस चीज की तुम इबादत करते हो, अपने कौम से कहा किस चीज की इबादत करते हो।
बाप ने घर से निकालने की तंबीह की, इब्राहिम पीछे नहीं हटे। कौम ने पत्थरों से मार मार कर संसार करने की तंबीह की, इब्राहिम पीछे नहीं हटे। ये सारी कुर्बानियां इब्राहिम अलैहिस्सलाम देते आ गए। अरे बच्चों के लिए इब्राहिम की जिंदगी नमूना है। कहां चले गए आज हमारी कौम, कहां चले गए हमारी उम्मत? आज कुछ बच्चों के बारे में कह दिया जाए तो कहते हैं कि मौलवी साहब अभी बच्चे हैं। अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच्चा थे, तभी तो अपने बाप के सामने खड़े हो गए, हक के लिए अपने बाप के सामने ज़बान खोले। अरे बच्चों के अंदर वो मिजाज पैदा करना चाहिए, बच्चों के अंदर वो शऊर पैदा करना चाहिए कि तौहीद क्या होता है, शिर्क क्या होता है, हक क्या होता है, बातिल क्या होता है, सच क्या होता है, झूठ क्या होता है। ये सारी बातें बच्चों के दरमियान लाना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी होती है। आइए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब बचपन का मरहला गुजरता है, जवानी के दहलीज पर कदम रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जान मांगी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनकी जान मांगी, की शक्ल में मांगी। जब इब्राहिम ने बुतों को तोड़ दिया, जब इब्राहिम ने बुतों को तोड़ दिया, कौम के लोगों ने पूछा ये काम किसने किया? कौम के लोगों ने कहा एक पता ही एक नौजवान है जिसने इन बुतों का काम किया रहेगा, इस तरह करने वाला एक नौजवान है। अरे उस कौम के लोगों ने क्या किया? एक आग को तैयार किया, बड़ी खतरनाक आग थी, अगर उस आग पर से कोई परिंदा भी गुजर जाता तो जलकर राख हो जाता। ऐसे आग में इब्राहिम को जाना पड़ा, कूदना पड़ा। इब्राहिम पीछे नहीं हटे, इब्राहिम अपने कदम पीछे नहीं हटाए। अरे मेरे नौजवानों, कहां हो मेरे नौजवानों? आज तुम्हारी जवानी का सवाल है, तुम्हारी जवानी का सवाल है कि आज नौजवान जरा सा मामला दुनिया के पीछे दौड़ता दौड़ता दिखाई देता है, तौहीद के लिए अपने आप को तैयार नहीं करता, इस्लाम के लिए अपने आप को तैयार नहीं करता। मेरे नौजवानों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में कूदना पड़ा, आग में कूद गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में कूद जाते हैं, आसमान से आवाज आती है वक़ुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अलैका। थोड़ा आवाज बढ़े, कुछ आवाज नहीं आई। खुलना या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से हुक्म दिया, ऐ आग तो इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। इब्राहिम अल्लाह चाहता तो आग को बुझा सकता था कि नहीं बुझा सकता था, आग को खत्म कर सकता था कि नहीं कर सकता था। उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को हुक्म दिया, ऐ आग तो इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा, इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। इतनी ठंडी हो कि इब्राहिम को सलामती मिले, इब्राहिम को सुकून मिले, इब्राहिम को राहत मिले। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हो जाती है, ये सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ खास था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग से कहा, ऐ आग तो इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में हैं, आग अपनी खासियत को अपने अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम के लिए अपनी खासियत को रोक लेती है। सिर्फ इब्राहिम के लिए अपनी आग की फितरत क्या है? जलाना है। आग जल रही है, इब्राहिम अंगारों में है, उसके बावजूद भी इब्राहिम को जलाती नहीं है, सिर्फ अपनी खासियत को रोक लेती है। आग बंद नहीं हुई, आग भड़क रही है, कौम देख रही है, आग भड़क रही है, इब्राहिम को जलाती नहीं है। ये इब्राहिम के लिए अल्लाह का इनाम था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम के हर मोड़ पर ऐसी मदद की, इसलिए की कि इब्राहिम ने जब भी अर्श वाले का हुक्म हुआ, हर हुक्म पर इब्राहिम अपने सर को झुकाता, सरे खम तस्लीम करते और मानते चले गए। अरे इसके अलावा आप जानते हैं इब्राहिम अपनी बीवी सारा को लेकर निकलते हैं। एक वक्त का बादशाह था, एक बादशाह था जो गलत इरादे का था, हजरत सारा पर गलत नजर रखा उसने। ऐसा अल्लाह ने मेरी उम्मत की माओ, उम्मत की बेटियों, जरा हजरत सारा की इस बात को गौर से सुन लेना। बुखारी शरीफ के अल्फाज है, जब इब्राहिम की बीवी हजरत सारा के साथ उसने बुरा इरादा किया तो उस वक्त के बादशाह को अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि पैरों के नीचे जमीन हिल जाती है और अंदर धंसने लगता है। उसने कहा सारा से, तू अल्लाह से तू दुआ कर और मुझे यहाँ से निकाल दे, मुझे बचा ले, मैं तुझे कुछ नहीं करता। अल्लाह की बंदी हाथ उठाती है, दुआ करती है अल्लाह के दरबार में, अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। मेरी माओ, मेरी बहनों, क्या होगी सारा का ईमान क्या होगा? दुआ करती है, हाथ उठाती है और फौरन दुआ का रिजल्ट वहां पर दिखाई देता है। कहां चले गई हमारी माँ और बहनें, कहां चले गई हमारी औरतें? औरतों के लिए हजरत सारा की जिंदगी नमूना है, हजरत हाजरा की जिंदगी
नमूना है। इतना ही नहीं मेरी माँ और बहनों, इसके अलावा आप जानते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम तकरीबन 80 पर 2 साल की उम्र तक अल्लाह से गिड़गिड़ाते हैं, औलाद के लिए तरस जाते हैं। जब औलाद देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है, ऐ इब्राहिम जिस औलाद को तूने मांगा था, जिस औलाद के लिए तू सालों साल तड़प रहा था, आज मेरा हुक्म है इस बच्चे को और इस बच्चे की माँ को ले जाकर एक बेवादी में छोड़ दे, ऐसी जमीन में छोड़ दे जहां पर देखिए ना पानी है, ना कोई झाड़ है, ना कोई साया है, कोई चीज नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फौरन अपनी बीवी को, अपने बेटे को ले जाते हैं और छोड़कर निकलते हैं। बीवी पूछती है, बुखारी के अल्फाज है, माए हाजरा बार बार सवाल करती है हजरत इब्राहिम से, कहां चले जा रहे हो, हमें छोड़कर कहां जा रहे हो। और मक्की माओं से मेरा सवाल है, हाजरा क्या औरत नहीं थी? क्या हाजरा के अंदर वो ईमान ही है जो आज हमारे अंदर है? कि हाजरा ने सवाल किया, इब्राहिम लाजवाब जवाब नहीं दे पा रहे। इब्राहिम को गम खाया जा रहा है कि अल्लाह का हुक्म है, बस अल्लाह के हुक्म के सामने इब्राहिम आगे बढ़ते गए। बीवी पीछा करती है, अपने शौहर को पूछती है, अरे मेरे सरताज आप हमें छोड़कर कहां जा रहे हो? बीवी के इस जवाब पर कुछ जवाब नहीं निकला। आखिरकार सवाल करती है, क्या आपको अल्लाह ने हुक्म दिया? हजरत इब्राहिम ने कहा कि हाँ, बस ये जुमला सुनना था। मेरी माँ और बहनों, हाजरा ने कहा, इज्जत नहीं उसीका अल्लाह है, तब तो हमें अल्लाह जाये नहीं करेगा, अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की वो बंदी हजरत हाजरा का ईमान क्या होगा जब हजरत हाजरा ये अल्फाज अदा करती है। अल्लाह को इतना पसंद आता है कि हजरत हाजरा अपने बेटे के लिए, पानी के लिए जो सफा और मरवा की सही करती है, हर हाजी के लिए, हर मोतमिन के लिए लाजिम करार दिया, जब भी तुम हज और उम्रे को जाते हो सफा और मरवा की सही के बगैर आ नहीं सकते। अरे बताओ मेरे दोस्तों, हाजरा की कुर्बानियां, हाजरा ने अपने बेटे को लेकर वाले दिए। चंद साल गुजरते हैं, जब बच्चा चलने फिरने का काबिल होता है, अर्श अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इब्राहिम को ख्वाब के जरिए आजमाता है, इम्तिहान लेता है। देखिए हर इम्तिहान एक इम्तिहान से बढ़कर होता है, हर इम्तिहान एक इम्तिहान के परसेंटेज से बढ़ता जाता है। इब्राहिम को हुक्म होता है कि अपने बेटे को, अपने लगते जिगर को, जिसको तूने सालों साल मांगा था ना, आज उसको मेरी राह में कुर्बान कर। ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में तुझे देखा है, तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है? या अबती फरमा सतजीदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। ऐ मेरे अब्बू जान, आपको जो हुक्म मिला है आप करते जाइए, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, ये इब्राहिम क्या ये इस्माइल क्या किसी मदरसे का तालिब इल्म था? क्या किसी जगह जाकर पढ़ा हुआ था? नहीं, ये फैजाने नजर थी या के मकतब की करामत थी, ये फैजाने नजर थी या के मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी? हजरत मेरी माओ, मेरी बहनों, मैं आपसे सवाल करता हूँ, हजरत इस्माइल को ये तरबियत देने वाली कौन थी? एक माँ ही तो थी। एक माँ के लिए हाजरा की जिंदगी नमूना नहीं है कि हजरत इस्माइल को तरबियत देने वाली, ये अखलाक सिखाने वाली, अपने बाप के सामने खड़े खम तस्लीम करने की जो तरबियत दी, तालीम दी, ये किसने दी? एक औरत ने दिया, एक माँ ने दिया। मेरी माओ, मेरी बहनों, आज तुम्हारे पेट से, तुम्हारे कोख से पैदा होने वाले बच्चे को इस्माइल की तरबियत की जरूरत है। आज तुम्हारे पेट से पैदा होने वाले बच्चे तारीख इंतजाम बनने की जरूरत है, मोहम्मद बिन कासिम बनने की जरूरत है, सलाहुद्दीन अय्यूबी बनने की जरूरत है। आज तुम्हारे पेट और कोख से पैदा होने वाले बच्चे आज दुनिया के गद्दार, इस्लाम के गद्दार, मिल्लत इस्लामिया पर इज्जत का दागदार करने वाला बंदा दिखाई देता है। आज तुमने औलाद की क्या तरबियत की है? क्या तुम्हारे लिए हजरत हाजरा और सारा नमूना नहीं है? क्या इनकी जिंदगियां तुम्हारे लिए नमूना नहीं है? कहां जा रहे हो? कहां गफलत की नींद में सो रहे हो? ऐ मेरे नौजवानों, आज तुम्हारी जवानी का सवाल है। इब्राहिम जब जवान होते हैं, कैसी कुर्बानियों का सामना करना पड़ता है। अरे नन्हे मासूम बच्चे के लिए जब हुक्म होता है, बाप और बेटा तैयार हो जाते हैं, दोनों चले जाते हैं अपने आप को ज़बा होने के लिए। इस्माइल तैयार है, बाप कुर्बान करने के लिए अपने बेटे को इब्राहिम तैयार है। तफसीर इब्न कसीर में नकल किया गया है और कहते हैं कि आम तौर पर अगर बाप अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करता, किसी और के जरिए दबाव कराता, तो ये अलग बात थी, लेकिन सबसे बड़ी कुर्बानी ये थी कि इब्राहिम
सालों साल भीख मांगने के बाद अपने ही लफ्ते जिगर को अपने ही हाथ से ज़िबा करना, ये असल बड़ा इम्तिहान था। जरा गौर करना, यहाँ पर बैठा हुआ हर बाप से मेरा सवाल है, हर माँ से मेरा सवाल है, अपने आप से भी सवाल करता हूँ। आज हमारे बच्चे को बुखार आ जाती है तो हमारी रातों की नींद उड़ जाती है, अपने बच्चे को जरा पैर में ठोकर लग जाता है तो हमारी नींद उड़ जाती है, हमारे बच्चे को जरा तकलीफ होती है तो बाप कहता है कि अपने बेटे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। बच्चा जरा बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में चले जाता है तो बाप डॉक्टर से कहता है मेरे बेटे को बचा लेना, मेरी सारी आस्ती बेच कर दे दूंगा, मेरी जायदाद बेच कर दे दूंगा, जितना पैसा हो मैं दे दूंगा, मेरे बेटे की जान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अरे इतना इंपॉर्टेंट जान जब बेटे की मेरे और आपके लिए है, क्या इब्राहिम के लिए नहीं थी? क्या इब्राहिम के लिए नहीं थी जो 80 पर 2 साल तक भीख मांगने के बाद औलाद नहीं थी? तो ऐसे इब्राहिम को जब अल्लाह ने हुक्म दिया ज़िबा कर दो, इब्राहिम तैयार हो गए, इस्माइल तैयार हो गए। जब छुरी चला रहे आसमान से आवाज आती है वनादैनाहु या इब्राहिम खसद्दक़्त रुया, इब्राहिम रुक जा, अब तुझे हमने जो आजमाया है, हमने जो तेरा इम्तिहान लिया है, तूने सच करके दिखाया। हमें मकसूद तेरे बेटे का खून नहीं है, तेरे बेटे की जान नहीं है, हम तुम्हें ज़िबे अजीम देते हैं, फिदे अजीम आसमान से हम तुझे एक बार दुम्बा भेजते हैं। ये अजमत वाला बकरा था, अल्लाह ने आसमान से भेजा, उसको ज़िबा किया। यहाँ पर एक सवाल हम में से हर एक के लिए है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतने साल औलाद के लिए भीख मांगते हैं। आज हमारे घरों में हमारी माँ और बहनों, हमारे भाइयों बुजुर्गों, आज हमारे घरों में शादी ब्याह होती है, साल 2 साल में औलाद नहीं होती है, 8 साल 4 साल औलाद नहीं होती है, तो आज हम अपनी बहू बेटियों को घरों के दरवाजे पर लेकर चले जाते हो कि हमें औलाद नहीं हो रही है, हमारे घर में नवासा नहीं आया, हमारे घर में पोता नहीं आया। अरे घरों के दरवाजे पर दस्तक देने वालों, इब्राहिम की जिंदगी से सीरत हासिल करो, इब्राहिम की जिंदगी से सबक हासिल करो। 80 पर 2 साल की उम्र तक तकरीबन इब्राहिम अल्लाह के दरबार में रो रो कर वहां पर औलाद मांगा, और तुम घरों के दरवाजे पर भीख मांगते हो। अरे क्या सीखा हमने बकरीद के मौके पर, क्या सीखा हमने इस ईद के मौके पर जब इब्राहिम की सीरत को पढ़ते हैं और सुनते हैं, ऐसे लगता है कि हमारे सरों पर से चले जाती है। हकीकत ऐसी नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अल्लाह ने इसीलिए रखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारे जिंदगी के हर गोशे में, हर शोबे में, हर मोड़ पर नमूना है मेरे और आपके। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा, हम तमाम के लिए अल्लाह ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम तमाम के लिए इब्राहिम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी नमूना है। लेकिन अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा तुम्हारे लिए इब्राहिम की जिंदगी। कितना बड़ा एजाज है, कितना बड़ा शर्फ है। आइए मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इब्तिला व आज़माइश, इतने मराहिल से इब्राहिम गुजरते हैं। अल्लाह खुद ऐलान करता है वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। अल्लाह ने जब भी इब्राहिम को आजमाया, जब भी इब्राहिम को किसी मामले का हुक्म दिया, किसी के काम के करने का हुक्म दिया, उसको अपनाया, जिससे रुकने का हुक्म दिया वहां पर रुक गए। इब्राहिम जब भी हम कुछ कहते हैं उसको तर्ज गुजरता है। कोई काम इब्राहिम ने जी चुराया नहीं। ये अल्लाह का ऐलान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम के जिंदगी के तमाम मराहिल को जिक्र कर दिया। और मेरे दोस्तों, जब इंसान अल्लाह के दरबार में सब कुछ तैयार हो जाता है कुर्बान करने के लिए, वो मोर होता है, ये मोहब्बत की इंतहा होती है, ये मोहब्बत की इंतहा होती है। एक शायर ने क्या बेहतरीन अंदाज में कहा, जब से हुई गुम मेरी मर्जी तेरी मर्जी में, जब से हुई गुम मेरी मर्जी तेरी मर्जी में, मौत में भी हमने पाए जिंदगी के मजे। मौत भी आती है तो रब से मुलाकात की खुशी में इंसान रोता नहीं बल्कि मुस्कुराता हुआ चला जाता है कि मेरा रब मुझे मुलाकात के लिए बुला रहा है। अगर हम अपनी मर्जी को रब की मर्जी के हवाले कर दे, रब ने जैसे कहा वैसे अगर जिंदगी गुजारेंगे तो मुझे और आपको मौत के वक्त भी तकलीफ नहीं होगी, फिक्र नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि हमने अपनी जिंदगी उसके अहकामात के मुताबिक अगर गुजारा हो। तो मेरे मोहतरम हाज़रीन, आइए इसके अलावा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत सारी आजमाइश आपने सुना है। गुज़िश्ता 10 दिन ग़ालिबन आप मुसलसल इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ही सुना होगा। इब्राहिम को कैसे कैसे आजमाया गया, क्या ये आजमाइशें मामूली थी। अगर दुनिया की कोई और किताब ये ऐलान करती कि एक इंसान अपने बेटे को ज़बाह कर दिया तो लोग बोलेंगे बेवकूफ़ है, कौन कर सकता है ऐसा, मानेंगे कोई?
مان سکتا ہے کوئی؟ نہیں مان سکتا. لیکن قرآن کہتا ہے تو میرا اور آپ کا ایمان ہے، مانیں گے، ہم مانیں گے. یہ قرآن کا اعلان ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں. عام طور پر کوئی انسان کر نہیں سکتا، لیکن ابراہیم نے کیا ہے. اس لیے کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کی تمام قربانیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین. ابراہیم کو ہم نے جو آزمایا ہے نا، ابراہیم کو جو آزمائش، جو امتحانات ہم نے دیے، یہ سب سے بڑے بڑے امتحانات، چھوٹے امتحانات نہیں، چھوٹے امتحانات نہیں، بڑے بڑے امتحانات، بڑے بڑے آزمائشیں ہم نے ابراہیم کے لیے رکھا تھا. اور ابراہیم ہر ایک پہ کامیاب ہوتے چلے گئے. آخر کار ابراہیم کب کامیاب ہوتے چلے گئے، ہر معاملے میں کامیاب ہوتے چلے گئے. تو یاد رکھنا میرے دوستو، ہم دنیا کے معاملے میں کسی سے محبت ہوتی ہے، کسی سے دوستی ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وفادار ہے کہ نہیں ہے، یہ وفادار ہے کہ نہیں. یہ سیاسی معاملات بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وفادار ہے یا نہیں ہمارا، اس اعتبار سے. لیکن اللہ رب العالمین نے ابراہیم کے بارے میں اعلان کر دیا، وَإِبْرَاهِيمَ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. ابراہیم وہ ہے جو اپنے رب کا وفادار ہے، وف کے ساتھ وفاداری کی ہے. میرے دوستو، آج وفاداری کی ضرورت ہے. اپنے رب کے ساتھ وفاداری کرو. اپنے رب کے ساتھ اگر ہم وفاداری نہیں کریں گے، دنیا میں جوتیاں کھاتے رہیں گے، دنیا میں ہم پر عذاب آتا رہے گا، ہم پر مصیبتیں آتی رہیں گی. جب انسان رب کا وفادار بن جاتا ہے تو ابراہیم کو جیسی نصرتیں نازل ہوئی، ویسی نصرتیں ہم پر بھی آ سکتی ہے. آج ضرورت ہے وفاداری کی. وفاداری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی زندگی کے ہر فیصلے کو اس کے فیصلے کے حوالے کر دیتا ہے. ایک واقعہ آپ کو حوالے کرتے ہیں، اپنی بات کو ہم سمیٹتے چلے کہ آئیے معزز حاضرین، انسان اللہ کا حکم ملتا ہے. میرے اور آپ کے سامنے جب اللہ کا حکم آتا ہے تو عام طور پر میرا اور آپ کی خیال، میرا اور آپ کی سوچ کیا رہتی ہے؟ ہاں ایسا کون کرتے ہیں مولوی صاحب؟ آج کون کرتا نہیں ہے؟ وڈی کو کون کھاتا نہیں ہے مولوی صاحب؟ وڈی کو کون لیتا نہیں ہے مولوی صاحب؟ دھوکہ نہیں سر کا کون بیپار کرتا ہے؟ ارے یاد رکھنا دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، یاد رکھنا کون کرتا ہے کون نہیں کرتا یہ سوال نہیں ہے. آپ کے بارے میں آپ کو سوال ہوتا ہے، آپ کی خبر میں آپ کے بارے میں سوال ہوگا، کسی اور کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی وہی ہے. انہوں نے کسی کا نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا میرا میرے رب کا تعلق کیسا ہے، میرا رب کا تعلق کیسا ہے. جب محمود اور ایاز، آپ نے سنا ہوگا، ایک بڑا بادشاہ محمود ہے اور منسٹرز کے ہاتھ میں رکھا، کہا اس کو پھوڑ کر بتاؤ. لائن سے پورے منسٹرز بیٹھے، ہر ایک لیتا موتی کی تعریف کرتا اور رکھ دیتا، کوئی نہیں پھوڑ رہا ہے. ہر ایک لیتا اور موتی کی تعریف کرتا اور رکھ دیتا ہے. آخر میں ایاز کو ہلایا بادشاہ نے، کہا ادھر آؤ. ایاز ہے، کہا اس کو پھوڑ دو. فوراً ہتھوڑا دیا، پھٹ مارا اور پھوڑ دیا. اب پوچھا آپ بتاؤ ایاز، تمہارے پھوڑنے میں ان کے نہ پھوڑنے میں فرق کیا ہے، ان کو سمجھاؤ. تو ایاز نے کہا کہ آپ لوگ کیوں نہیں پھوڑے؟ کہا اتنی قیمتی موتی ہے، اگر پھوڑ دیں گے تو پھر ملے گی نہیں، اتنی بہت قیمتی ہے. ایاز نے کہا آپ لوگوں نے موتی کی قیمت کو دیکھا، میں میرے بادشاہ کے حکم کی قیمت کو دیکھا. بادشاہ کا حکم اس موتی کی قیمت سے زیادہ ویلیو ہے. یہ موتی وقتی ہے، بادشاہ کا حکم اس سے زیادہ امپورٹنٹ اور ویلیو ہے. ایسا میری اور آپ کی زندگی میں اللہ کا حکم امپورٹنٹ ہے. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا، اللہ کے حکم کے سامنے بیٹا چھوٹا ہے، بیٹے کی زندگی معمولی ہے. کیوں؟ اللہ کے دیا ہوا بیٹا ہے، لے لیا تو اس کا ہے. یہ چیز آ جانی چاہیے میرے اور آپ کے اندر. آج ہمارے گھروں میں ذرا بچہ بیمار ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو غیر اللہ کے دروازے پر چلے جاتے ہیں. کہاں چلے جاتے ہیں؟ ارے آزمائش کو آزمائش سمجھو دوستو. آزمائش کو اگر ہم اللہ سے نعوذ باللہ کیسا گلا اور شکوہ کرتے ہیں، گلا اور شکوہ کرنا نہیں ہے. میری اور آپ کی زندگی کی صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیشہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے سامنے نمونہ بنا لینا. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے امام بنایا. اور جب اللہ رب العالمین نے کہا ابراہیم کو، جب ہم نے آزمایا تو ابراہیم علیہ السلام تمام چیزوں کو مکمل کیا، تو ہم نے ابراہیم کے لیے اعلان کیا، انعام دیا. کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم تمام کے لیے تجھے امام بنانا چاہتے ہیں. کتنا بڑا احساس ہے،
कितना बड़ा, किस किस मामले में इमाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, कुर्बानी के मामले में इमाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज के मामले में इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमाम है, खतने के मामले में इब्राहिम अलैहिस्सलाम इमाम है, दाढ़ी और मूंछों की साथ के सिलसिले में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और जिस्म के बालों की सफाई के मामले में वो इमाम है। ये सारी सुन्नत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चलती आई, वही इमामत कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं उसी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खानदान से, मेरे दादा के खानदान से। और बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, वक्त खत्म हुआ चाहता है। एक आखिरी बात इंशाल्लाह बताकर मैं अपनी बात को खत्म करता चलूं कि जिंदगी, दुनिया जो है ना, मेरी और आपके सामने दुनिया की मिसाल को अगर हम हकीकत में समझ जाए, मेरी और आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या है कि आप देखते हैं कश्ती, जिसको हम पड़वा, शिप कहते हैं, पानी में जो जाता, पानी का जहाज। पानी का जहाज जब पानी में चलता है, जब तक जहाज पानी के ऊपर होगा और पानी में जहाज में पानी नहीं आएगा, जहाज सलामत और जहाज के आदमी सलामत है। अगर वही पानी कश्ती में आ जाए, जहाज के अंदर आ जाए, तो क्या पानी कश्ती सलामत रह सकती है? कश्ती में रहने वाले सलामत रह सकते हैं? नहीं, बर्बाद हो जाते हैं। दुनिया की जिंदगी वही है। अल्लाह के अहकामात के ताबे जब तक मेरी और आपकी जिंदगी होगी, हम कामयाब रहेंगे। जब हमारी जिंदगी को हम अल्लाह के अहकामात के बगैर अपने अहकामात, अपने ख्वाहिशात के ताबे कर लेंगे, तो ही कश्ती का मामला हो जाएगा। जैसे लोग बर्बाद हो जाते हैं डूब कर, वैसे मैं और आप बर्बाद हो जा सकते हैं। अल्लाह की मदद मेरे और आपके हवाले नहीं हो सकती है। लिहाजा आखिर में मेरे मोहतरम हज़रात, जो आपने अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी दी है, अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल करे। याद रखें, कुर्बानी आप जो दे रहे हैं और दे चुके हैं, इखलास शर्त है, इखलास शर्त है। रियाकारी, दिखावा हरगिज़ ना होना। और जो अब आपको अल्लाह ने सलाहियत दिया है, ताकत दिया है, बहाना बनाकर व्यापार बराबर नहीं है और कमाई बराबर नहीं है। ऐसे बहानों से कई अब आप अपने आप को कुर्बानी से रोके हैं, याद रखो गलत है, हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी हमसे गरीब थे, लेकिन कभी अल्लाह के नबी किसी साल में कुर्बानी से अपने आप किसी साल भी नहीं रोका। लिहाजा मेरे और आपके लिए ज़रूरी है, जो अब आप इस्तिताअत रखते हैं, अगर अब तक कुर्बानी का इरादा नहीं किए हैं और 2 दिन बाकी है, लिहाजा आप तमाम से गुजारिश है कि कुर्बानी का इरादा करें और कुर्बानी करें इखलास के साथ, इखलास नीयत के साथ। और आखिरी बात यह है कि पाकी सफाई का ख्याल रखें कि अपने महलों और गलियों में, गली कूचों में गंदगी कहीं ना फेंके। कुर्बानी के जानवर की गंदगी, खाई हुई हड्डियों की गंदगी किसी गैर के घर के सामने, पड़ोसों के सामने डालकर किसी को तकलीफ देना, ये मुसलमान का काम नहीं हो सकता है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन कहने वाले को, सुनने वाले को अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे खताओं को बख्श दे। अल्लाह जब तक हमें दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रख, और ले भी ले तो ईमान की हालत में ले ले। अल्लाह हमें सीरत इब्राहिम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो कुर्बानियाँ इब्राहिम ने दी थी, अल्लाह उससे सबक लेकर हमारी जिंदगियों की तब्दीली करने के लिए हम सबको तौफीक अता फरमा। हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना ले। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे खताओं को बख्श दे। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम और इस्लाम का बोल बाला करने वाला बना कर रख अल्लाह, इस्लाम की खिदमत करने वाला बना कर रख अल्लाह। हम में से जो भी परेशान हैं, अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमा। रोजी रोटी के मामले में कोई परेशान है, नौकरी के मामले में परेशान है, अल्लाह सबके लिए हलाल रास्ते फराहम फरमा ले, हलाल रोजी नसीब फरमा, हलाल कमाई नसीब फरमा। हम में से जो भी बीमार है या हमारे घरों में माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार कोई भी बीमार है, अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती से मालामाल फरमा। सबके अल्लाह सबके बीमारियों को दूर फरमा ले। अचानक आने वाली मुसीबत और परेशानियों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह छोटी बड़ी बलाओं से, एक्सीडेंट से हमारे घर वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे मदरसों की, मस्जिदों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे इस्लामी मुसलमानों के घरों की, ईमान की, जान माल की, इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी मुसलमान ईद करने से अल्लाह रह गए हैं किसी परेशानी से, अल्लाह उन सब ईद की खुशियाँ नसीब फरमा। अल्लाह हमारे कुर्बानियों को कबूल फरमा, हमारे इखलास को कबूल फरमा। अल्लाह हमें मुखलिस बना दे, मुवहिद बना दे, नमाजी बना दे, दीनदार बना दे, मस्जिदों को आबाद करने वाला बना दे। हमारी माँ और बहनें जितनी भी आई हैं, अल्लाह सबके जायज़ ख्वाहिशों को पूरी फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन इन्नहु तआला तव्वाबुर रहीम।